کہ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سلامتی کی دعا دیکھی، سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو، وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے۔ اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اچھا، اس سورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں، اس سورت سے ایک ہی سورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں۔ ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے۔ ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے۔ اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں، یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے تینوں واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کے اور میرے قرآن میں سب موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ اصحاب کہف پر یا اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے، 7 سلیپر کا بورڈ لگے ہوئے اب بھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے ہم سیکھیں گے، کیا میں اس پر ڈسکس کروں گا۔ اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے، بڑے نیک لوگ تھے۔ جو شہر کا نام کیا نام تھا؟ افسوس۔ اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے۔ اچھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا، جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اچھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ بادشاہ کا نام تھا، اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے۔ ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مگر وہ بڑا ظالم تھا۔ تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے، یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ادھر حالات بدلتے رہے۔ بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں۔ جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا، اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے۔ ایک تختی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کری۔ حکم تو تھا بادشاہ کا۔ اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے۔ بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا، اور یہاں جناب یہ سوئے ہوئے ہیں۔ آفٹر 300 ایئرز کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس۔ وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، اللہ پر ایمان لاتا تھا، مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا، کمپلین کرنا شروع کر دی، آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی، سمجھاتا لوگوں کو، لوگ اس کی بات کم سنتے، اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے۔ تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے، کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں،
सैकड़ों साल गुजर गए ना। अब अल्लाह की शान देखिए उस बादशाह की, वो गिरिया बाजारी, वो दुआएं कैसी रंग लाई कि एक चरवाहा जो था बकरियां चराते चराते उस गार के करीब पहुंचा। अब करीब पहुंचा तो दीवार 300 साल पुरानी हो गई थी, तो दीवार धड़ाम से गिरी। जैसी गार के अंदर उसने देखा तो वो घबरा कर दौड़ पड़ा। अच्छा, यहां जैसी दीवार गिरी तो उन बंदों में से वो 7 अफराद उठ गए। अच्छा, वो उठे तो वो समझे हम 2, 4, 6 घंटे 8 घंटे सोकर उठे, ठीक है ना। उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी, अब भूख लग रही है तो एक साथी को कहा जरा जाना बाहर और देख भाल कर बादशाह दकियानूस के सिपाही कहीं पकड़ न ले, खाना लेकर आ गए। वो बंदा छुपते छिपाते बाजार गया तो सारे बाजार का माहौल ही अलग, इमारतें अलग। बहरहाल इतना उसको ख्याल नहीं आया, उसने जाकर एक दुकानदार नान भाई जो रोटी बेचने वाला था उसको उसने पैसे दिए कि मुझे कुछ रोटियां चाहिए। तो नान भाई ने जब वो पैसे देखे कहा ये सिक्के कहां से आ गए, ये तो करेंसी खत्म हो गई थी, 300 साल पुरानी करेंसी थी। तो कहा ये पैसे तो हमारे यहाँ नहीं चलते, किस जमाने के पैसे लेके आ गए? भाई यही तो पैसे, कल तो हमने पैसे लेके गार में गए, आज तुम्हें दे रहे, तुम कह रहे पैसे नहीं चलेंगे। अच्छा ये बताओ दकियानूस बादशाह कहाँ है आजकल? वो जो असहाबे कहफ में से एक बंदा था वो पूछता है कौन दकियानूस, इस जमाने का तो कोई बादशाह यहाँ पर नहीं है। अब वो हैरान कि बादशाह कल तो हम जाके गार में गए, आज बादशाह की कोई पहचान नहीं रहा, करेंसी हमारी चल नहीं रही। उधर वो नान भाई समझ गया कि ये सैकड़ों साल पुरानी करेंसी इनके पास है, इनको लगता है कोई खजाना मिल गया है। तो इन्होंने पकड़कर इस बंदे को जो असहाबे कहफ में से थे पुलिस वालों के या हुक्काम के हवाले कर दिया। वो हुक्काम उन्हें बादशाह के पास ले गए। बादशाह को जब ये सारा वाकया पता चला उसने कहा हम तो दकियानूस बादशाह के जमाने के लोग हैं, हम तो सोए उठे तो आप बता रहे हैं कि वो बादशाह भी नहीं है, पैसे भी ये नहीं चल रहे, ये जमाना कौन सा है? तो बादशाह ने मालूम किया तो पता चला कि ये 300 साल पुरानी बात कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि बंदा भी जवान है, बूढ़ा भी नहीं और 300 साल पुरानी बात कर रहा है? मैं अकेला नहीं हूं, 7-6 और भी हैं। तो किधर एक गार में है? तो चलो, अब बादशाह ने पूरा लश्कर लिया। यकीन तो बादशाह को भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब पूरे लश्कर को लेकर जब वो गार के करीब पहुंचे तो अगर जो गार में लोग थे वो समझ गए कि दकियानूस बादशाह के बंदे आ गए, हमारा बंदा पकड़ा गया है, अब हमारी खैर नहीं है। वो सजदे में चले गए, वो दुआएं करने लगे, इस्तिगफार पढ़ने लगे। मगर जब सिपाही आए तो सिपाही भी कोई और, बादशाह भी कोई और, किसी को यकीन ना आए इनकी बातें। अब वो तख्ती काम आई। अब जब दीवार खोदी गई तो वो तख्ती निकली अंदर से जो 300 साल पहले दकियानूस बादशाह के बंदे ने, उसके मुलाजिम ने लिख कर रखी थी कि इन 7 बंदों के नाम ये हैं और ये दकियानूस बादशाह के खौफ से जाकर अंदर सोए हैं और ये ईमान वाले हैं। अल्लाह अकबर। जब बादशाह को ये पता चला ना, पहले तो वो गया सजदे शुक्र में कि अल्लाह तूने मेरी पुकार सुन ली, ऐसी निशानी बता दी कि बंदा मरने के बाद कैसे जिएगा, तूने तो जीते जी हमें दिखा दिया कि तू चाहे तो 300 साल तक कोई सोया रहे, ना उसका बाल बीका हो, ना बाल सफेद हो, ना बॉडी गले, और मेरे रब तूने उन्हें फिर जिंदा कर दिया। अब तना पूरा शहर आया, सारे लोग आए जो बेईमान हो गए थे, जो अल्लाह की कुदरत के इनकारी हो गए थे, सब कलमा पढ़ने लगे, सब अल्लाह की वहदानियत पर यकीन लाए। सुभान अल्लाह। अब ये जो असहाबे कहफ थे, सुभान अल्लाह, ये लोग जो थे जब इन्होंने देखा कि अब माशाल्लाह सब लोग ईमान ले आए हैं और ये काम सारा हो गया है, तो फिर उन्होंने कहा कि ए बादशाह हम अल्लाह के तुम्हें सुपुर्द करते हैं, तुम्हारा काम हो गया। ये फिर गार के अंदर गए और फिर सो गए और अल्लाह ने इसी हालत में इन्हें वफात दी। बादशाह बैदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को उनमें रखवा दिया। अल्लाह करीम ने असहाबे कहफ के गार का ऐसा रोब लोगों के दिलों में डाला कि लोग उनकी कब्रों तक नहीं जा पाते थे। असहाबे कहफ की लाशों का हिफाजत का इंतजाम भी रब ने किया और बैदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनाई, सालाना एक दिन मुकर्रर किया और हर साल लोग वहां पर उनके गोया उर्स में जमा होकर अल्लाह की इबादत करते और गोया वहां जाकर इबादत करते। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक वाकया जो तफसीर कुरान के जरिए मैंने आपको सुनाया। कुरान में सूरह कहफ में पूरा तफसील से वाकया मौजूद है। जो सूरह कहफ पढ़ते हैं, आयतें बार बार पढ़ते होंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा इद अवल फित्यतु इलल कहफ फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फदरबना अला आदानिहिम फिल कहफ सिनीना अददा थुम्मा बअथनाहुम लिनअलम अय्युल हिस्बैन अहसा लिमा लबिथू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। क्या तुम्हें मालूम हुआ, तर्जुमा कंजुल ईमान सुने, क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ की खो और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। जब इन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले ऐ हमारे रब हमें अपने पास से रहमत दे और हमारे काम में हमारे लिए राह याबी के समान कर, तो हमने उस गार में उनके कानों पर गिनती की कई बरस थपका। फिर हमने उन्हें जगाया कि देखें 2 गिरोह में कौन उनके ठहरने की मुद्दत ज्यादा ठीक बताता है, हम उनका ठीक ठीक हाल तुम्हें सुनाएं। वो कुछ जवान थे कि अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत बढ़ाई और हमने उनको हिदायत बढ़ाई। सुभान अल्लाह। इनके नामों में बहुत इख्तिलाफ है। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं उनके नाम ये हैं यमलीखा, मिक्शलीना, मिशलीना, मरनूश, दबरनूश,
शारदूश और 7वां चरवाहा था जो उन लोगों के साथ हो लिया। हजरत अली ने उसका जिक्र नहीं फरमाया। और इन लोगों के कुत्ते का नाम कितमीर था और लोगों के शहर का नाम अफसोस था और जालिम बादशाह का नाम दकियानूस था। तफसीर सावी में कुछ और नाम भी लिखे हैं। इन नामों में कुछ इख्तिलाफ जरूर है, मगर इनके नामों की बरकत क्या है। सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, असहाबे कहफ के नामों का तावीज 9 कामों के लिए मुफीद है। भागे हुए को बुलाने के लिए और दुश्मनों से बचकर भागने के लिए। तो भाग गया उसको बुलाना है या खुद दुश्मनों से बचना है, उसके लिए बड़ा मुफीद है। आग बुझाने के लिए कपड़े पर लिखकर आग में डाल दें, इंशाअल्लाह आग बुझ जाएगी। बच्चों के रोने और तीसरे दिन आने वाले बुखार के लिए। मगर फिर भी इस वाक़े से हमें दर्स क्या मिलता है कि मरने के बाद जिंदा होना, होकर उठना, ये हक है। और असहाब कहफ के इस वाक़े से गोया रब ने एक और कुदरत का नजारा हमें दिखाया। सुभान अल्लाह। और एक और बड़ी प्यारी बात पता चली कि जब बंदा अपने ईमान को बचाकर, अपने दीन को बचाकर, अपने आप को गुनाहों से बचाकर किसी सफर पर निकल जाता है, किसी जगह हिजरत कर जाता है, वतन छोड़ता है, फिर अल्लाह उसकी गैब से मदद फरमाता है। और ऐसी मदद फरमाता है कि अकल भी काम नहीं करती। देखे ना, 300 साल गार में अल्लाह ने हिफाजत की, क्योंकि ईमान की फिक्र थी। क्या आज के दौर में हमें ईमान बचाने की फिक्र है? हम तो बेईमानों की दोस्ती में भी खुश हैं। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है, बद मजहब है, मगर मैं पक्का हूं, मैं बैठता हूं उसके साथ, मैं सुनता हूं उसकी बातें, लेकिन मैं पक्का हूं, मैं बैठता हूं। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्ग वतन छोड़ गए, जान तकलीफ में डाल दी, मगर बेईमानों की सोहबत में ना बैठे। अभी आएगा ना माह रमजान, तो कुछ शुरू हो जाएंगे सोशल मीडिया पर, माह मुफस्सिरीन बन जाता है ना। हर बंदा कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से कर रहा होता है, अपने हिसाब से जनाब कुरान खोलेंगे। कोई पेंट शर्ट पहन के कुरान समझा रहा होगा, कोई दाढ़ी मुंडा कुरान समझा रहा होगा, कोई रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर आपको बेवकूफ बनाएगा। लोग सबकी भी सुनेंगे। अल्लाह के बंदो, ये ईमान के बाज़ औक़ात लोग डाकू होते हैं। हमें कुरान सीखना है, मगर आलिम दीन से सीखना है ना, मुफस्सिर कुरान से सीखना है। एक सही अकीदा आशिक रसूल आलिम दीन से सीखना है कि हर किसी से सीखना है। लेकिन नहीं यार, बस वो हर किसी को सोशल मीडिया का शौक है, मैं आज उसकी सुन रहा हूं, कल उसकी सुन रहा हूं, परेशान भी रहते हैं। हमारे पास आते भी हैं कि मौलाना साहब ये मैंने सुना था, मैं कंफ्यूज हूं, भाई किससे सुना था? यार फलां से सुना था। पहले उसने कहां से सुना ये तो पूछ के आओ। कभी किसी मोची से कपड़े सिलवाए आपने कि यार जूते बड़े अच्छे सीता, कपड़े भी इसी से सिलवा लूं? आप कहेंगे नहीं यार, मोची का काम जूते सीना, दर्जी का काम कपड़े सीना है। डॉक्टर आपका यार इलाज बड़ा अच्छा करता है, आप कहते हैं यार डॉक्टर इलाज बड़ा अच्छा करता है, घर भी इसी से बनवा लेता हूं, घर भी अच्छा बना देगा। अरे डॉक्टर का काम इलाज करना है, बिल्डर का काम घर बनाना है। दुनिया का हर काम हम उसके एक्सपर्ट से करवाते हैं, सीखते हैं। मगर दीन जिसकी मर्जी है वो सिखाए और हम बैठ के सुन रहे होते हैं। ना करें ऐसा। आप असहाबे कहफ के इस वाक़े से समझो कि ईमान की अहमियत क्या है। सैयद आला हज़रत ने 100 साल पहले समझाया। क्या फरमाया? सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहां वो चोर बलाते हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अब ये मुहावरा कितना कमाल का है, आंख से काजल चुराना। कैसे? काजल तो आंख के अंदर ही होता है। अल्लाह तो कहते हैं इतने शातिर हैं, इतने मक्कार हैं कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी आंख से काजल चुरा लेंगे। कुरान के नाम पर तुम्हारा ईमान छीन लेंगे, हैं? तफसीर के नाम पर दीन की बात करने आएंगे और तुम्हारे दीन लेके चले जाएंगे, तुम्हारे अकीदे में वसवसे की सुई चुबो के चले जाएंगे। तो ये समझना है कि मैंने अपने दीन की, अपने ईमान की हिफाजत कैसे करनी है। और सुभान अल्लाह, एक और बात ये पता चला कि बैदरूस बादशाह नेक दिल मुसलमान था ना। अच्छा, कुरान में वाकया मौजूद है ना। उसने क्या किया कि एक दिन मुकर्रर किया साल का, और बुजुर्गों के मजार के पास जाकर पूरा साल में एक दिन मुकर्रर करके लोग वहां जाते थे, गोया उनका उर्स मनाते थे, वहां इबादत करते थे, रब की इबादत करते थे। तो पता चला कि आज भी अगर बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर कोई साल में एक दिन मुकर्रर करके अल्लाह की इबादत वहां की जाए और उनका उर्स मनाया जाए, फातिहा पढ़ी जाए, तो इसमें कोई हरज नहीं है। असहाबे कहफ का ये वाकया ही हमें ये सबक दे रहा है, कुरान हमें ये बता रहा है। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक वाकया बयान करने का मकसद ये था कि कुरान में कैसे कैसे खजाने मौजूद हैं। तो प्लीज इस रमजान में सिर्फ कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी, कुरान पाक को अंडरस्टैंड करने की तरफ भी आए। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के माहौल में हमें तफसीर कुरान, सिरातुल जिनान बड़ी आसान